تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج دنیا کی ایک ایسی پاکیزہ مقام کی سیر کرنے والے ہیں کہ جس کا ذکر رب ذوالجلال نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جہاں تمام 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ یہیں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری قدیم ترین عبادت گاہ بھی کہلاتی ہے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جیسے بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے توسیع دی۔ یہ مسجد مسلمانوں کی قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ سے قبل 16 یا 17 ماہ تک مسلمان اسی مقام کی جانب رخ کر کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں ایک نماز ادا کرنے کا اجر 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں بہت سی انبیاء مدفون ہیں اور بہت سی انبیاء علیہم السلام نے یہاں دفن ہونے کی خواہش کی۔ تو دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں مسجد اقصیٰ کی۔ یہ مقام جس قدر پاکیزہ و اطہر ہے، اتنا ہی متنازع اور اختلافی بھی۔ یہودی اس مسجد کو ڈھانے پر بضد کیوں ہیں؟ وہ آئے دن یہاں آگ کیوں لگاتے ہیں اور اس مسجد پر بمباری کیوں کرتے ہیں؟ لیکن اب تو وہ ببانگ دہل مسجد اقصیٰ کے دروازے کھول کر اس کے اندر تک گھس آئے ہیں اور مسجد اقصیٰ پر مکمل قبضہ کر بیٹھے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک اپنے قبلہ اول کی تباہی پر خاموش تماشائی کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ تاہم اس معلوماتی سفر کی شروعات کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے شہر یروشلم میں قائم ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ 35 ایکڑ یعنی 1,44,000 مربع میٹر پر محیط ایک مقدس کمپلیکس ہے، جس میں ڈوم آف راک، مسجد قبلی، لائبریری، صحن اور دیگر مذہبی عمارات شامل ہیں۔ بہت سے لوگ ڈوم آف راک کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ مسجد اقصیٰ میں 5,000 نمازی ایک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق مسجد اقصیٰ دنیا کی دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے کے 40 سال بعد تعمیر فرمایا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اسے مکمل نہ کر سکی۔ لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کی۔ یہ اس قدر عالیشان عمارت تھی کہ جس کی تعمیر میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔ جب قوم بنی اسرائیل شرک اور گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر ظالم ترین بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے مسجد اقصیٰ کو تباہ کر دیا اور یہ تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کافی طویل عرصے تک یہ جگہ ویران اور ملبے کا ڈھیر بنی رہی۔ بابل سے رہائی اور یروشلم واپسی پر یہودیوں نے ایک مرتبہ پھر یہ عبادت گاہ تعمیر کی۔ تاہم رومی جنرل ٹائٹس نے ایک مرتبہ پھر اس مقدس مقام سمیت پورے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے شہر یروشلم کو فتح کیا، تب یہ مقام گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکنے کی ایک جگہ بن چکی تھی۔ حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پاک جگہ کو صاف کیا اور یہاں ایک سادہ اور چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی۔ مسجد اقصیٰ کی جو جدید عمارت ہمیں نظر آتی ہے، اسے بنانے کا سہرا خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک کے سر جاتا ہے۔ مشہور زمانہ گنبد ڈوم آف دی راک، جیسے قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا، جبکہ مسجد اقصیٰ کی عالیشان عمارت ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے تعمیر کروائی۔ یہ عمارت آج بھی اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار تسلیم کی جاتی ہے۔ ہم آج بھی مسجد اقصیٰ کی بیسمنٹ میں جا کر اس قدیم عمارت کو دیکھ سکتے ہیں، جو اموی عہد حکومت میں تعمیر کی گئی تھی۔
अब तो सखरा या डॉम ऑफ दी रॉक की बात करें तो ये गुंबद एक चट्टान के ऊपर तामीर किया गया है। वो चट्टान जहाँ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सफरे महराज का आगाज फरमाया था। जबकि बाद रिवायात में ये भी बयान होता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटे इस्माइल की कुर्बानी का इरादा भी इसी चट्टान पर फरमाया था। लिहाजा ये जगह न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मसीही और यहूदी मज़ाहिब में भी तकदीसियत की हामिल है। वैसे तो गुंबद सखरा उमवी खुलफा के ज़माने में बनाया गया था, लेकिन पहले इसका रंग सुनहरा न था। ये उस्मानी सुल्तान सुलेमान दी मैग्निफिसेंट थे कि जिन्होंने इस गुंबद को मुकम्मल सोने से तामीर करवाया। यरूशलेम पर सलीबी अफवाज के कब्जे के बाद ये मस्जिद एक चर्च में तब्दील कर दी गई थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह किया तो आपने इस मकाम को दोबारा एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए अहमियत की हामिल इसलिए है कि यही दीन इस्लाम का किबला अव्वल है, यानी मुसलमान इब्तिदा में 16 या 17 माह तक इसी पाक जगह की जानिब रुख करके नमाज अदा करते रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफरे महराज का आगाज भी इसी मकाम से हुआ था, जहां आपने अज़ल से अबद तक आने वाली तमाम अनबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात की इमामत फरमाई और यहीं से आपने बुर्राक पर बैठकर सिदरतुल मुंतहा और फिर अर्श तक का सफर तय फरमाया, जिस मकाम पर आपको यह एजाज हासिल हुआ। मस्जिद अक्सा में वहाँ आज भी एक यादगार कायम है। मस्जिद अक्सा का जिक्र अहादीस में तो जा बजा मिलता ही है। रब्बे करीम ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में भी इस पाक मकाम का जिक्र फरमाया है। यहाँ एक नमाज अदा करने का सवाब 500 नमाजों के बराबर बयान होता है। बाइबल के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर लोगों को तालीम देते और इन्हें दीन हक की जानिब बुलाया करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी मकाम पर रहा करती थीं। मस्जिद अक्सा की बेसमेंट में आज भी वो पाक मकाम मौजूद है कि जहां खुदा हजरत मरियम को बेमौसम के फल इनायत फरमाता था। लिहाजा ये मकाम दीन मसीहियत में भी इंतहाई मुकद्दस है। जबकि मस्जिद अक्सा से चंद कदम की दूरी पर मसीहियों का मुकद्दस तरीन मकाम भी मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ हॉली स्क्रिप्चर कहा जाता है। मसीही अकायद के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया और फिर दफनाया गया। यहूदियों का मानना है कि आज जिस जगह पर मस्जिद अक्सा वाक़ई है, यहाँ उनकी मुकद्दस इबादतगाह यानी टेंपल ऑफ सोलोमन हुआ करती थी, जो न सिर्फ इनकी तारीख बल्कि मुस्तकबिल में भी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। ये आज भी मस्जिद अक्सा से मुल्हिका एक दीवार को टेंपल ऑफ सोलोमन की बाकियात मानते हुए यहाँ इबादत करते हैं और इसके इन्हिदाम पर आंसू बहाते हैं। यहूदियों का यह अकीदा है कि जब तक टेंपल ऑफ सोलोमन दोबारा तामीर नहीं हो जाता, वो इस दुनिया में पहले जैसा उरूज हासिल नहीं कर सकती। वो उरूज जो इन्हें हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की अदवार में हासिल था। दोस्तों, ये वो वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर तीनों इब्राहिमी मज़ाहिब इस बाबरकत मकाम पर अपना तसल्लुत चाहते हैं, जबकि हकीकी तौर पर ये मस्जिद और इससे मुल्हिका तमाम इलाके उन फलस्तीनियों की मीरास हैं जो नस्ल दर नस्ल से यहाँ आबाद हैं, जो बेतहाशा बमबारी और कत्लो गारत गरी के बावजूद इस अर्ज़ी मुकद्दस से बेवफाई करने को तैयार नहीं। दीनी रिवायात हमें ये बताती हैं कि कुर्बे क़यामत से कबल इस अर्ज़ी मुकद्दस पर एक मरतबा फिर यहूदी काबिज होंगे और वो मस्जिद अक्सा को ढाकर दोबारा हैकल सुलेमानी को तामीर करेंगे। शाम और फलस्तीन समेत मशरिक़ वुस्ता की अक्सर इलाके उनके तसल्लुत में आ जाएंगे। ताहम दोस्तों, अभी वो वक्त नहीं आया है। यहूदी इस बाबरकत मकाम पर हमले और दरअंदाजी जरूर करते रहते हैं, ताहम सिक्योरिटी के अलावा इसका मुकम्मल कंट्रोल आज भी मुसलमानों ही के पास है। बाज़ यूट्यूब चैनल इन वीडियोस को बुनियाद बनाकर ये दावा कर रहे हैं कि ये यहूदी हैं जो मस्जिद अक्सा में दाखिल हो चुके हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से सैकड़ों साल पहले लगाए गए ताले भी इन लोगों ने खोल दिए हैं। दोस्तों, ये दावे और वीडियोस बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ हैं। वीडियो में नजर आ रहे ये तमाम लोग दर हकीकत यहूदी नहीं बल्कि मसीही हैं, जबकि जिस मकाम पर ये जमा है वो मकाम मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि चर्च ऑफ हॉली स्क्रिप्चर है, जो मस्जिद अक्सा से चंद मीटर्स की दूरी पर वाक़ई है। दरवाज़ा खोलने की ये तकरीबात हर साल ईस्टर के मौके पर अदा की जाती हैं। मसीही अकायद के मुताबिक ये वो मुकद्दस दरवाजे हैं कि जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मदफून किया गया था। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो चंद व्यूज़ की खातिर अवामुन्नास में सनसनी और मायूसी फैला रहे हैं। यूँ तो इसराइल की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमले होना एक मामूल की बात है, ताहम सन 1969 में एक ऑस्ट्रेलियन यहूदी माइकल रोहिन ने
मस्जिद अक्सा में आग लगा दी थी, जिसके नतीजे में 800 साल कदीम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मिंबर और इमारत के दीगर तारीखी हिस्से जलकर तबाह हो गए थे। 22 अगस्त के इस शर्मनाक वाकये को हर साल यौम मस्जिद के नाम से याद किया जाता है। बहुत सी अनबिया अलैहिमुस्सलाम की कुबूर मुबारक भी मस्जिद अक्सा के मुकद्दस अहाते में होने के दावे किए जाते हैं, जिनमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत याहया अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत मलाकी अलैहिस्सलाम काबिल जिक्र हैं। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी इसी मकाम पर कहीं मौजूद है, ताहम इसके बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम के जिस हिस्से में वाक़ है इसे पुराना शहर कहते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा इलाका है जो सिर्फ 1 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। तमाम मुकद्दस और काबिल एहतराम इमारात इसी इलाके में वाक़ हैं। कदीम शहर की कुल 8 दरवाजे या गलियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं और जो तारीखी लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। कदीम यरूशलेम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिनके नाम मुस्लिम क्वार्टर, मसीही क्वार्टर, यहूदी क्वार्टर और अर्मनी क्वार्टर हैं। मुस्लिम क्वार्टर इन सब हिस्सों में ज्यादा बड़ा और गुंजान आबाद है। यरूशलेम आज एक तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बन चुका है, जहां हमें एक से एक आलीशान दुकान और सड़कें नजर आती हैं। ताहम यरूशलेम ओल्ड सिटी में आज भी कदीम जमाने की दुकानें देखने को मिलती हैं। पत्थरों से तामीर करदा दीवारें, तंग गलियां और कदीम मकानात आज भी लोगों को उस दौर की याद ताज़ा करवा देते हैं कि जब अनबिया अलैहिमुस्सलाम यहाँ दीन हक की तबलीग करते होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा में इंसानी हाथ के बराबर भी कोई एक ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी नबी ने सजदा ना फरमाया हो। ये जगह नबियों की ही रिहाइशगाह थी, जिसे नबियों ही ने बनाया था। लफ्ज़ अक्सा के लगवी मानी दूर दराज के हैं, यानी दूर दराज की मस्जिद। ये मस्जिद भले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीलों की मुसाफत पर कायम थी, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद अक्सा से उनसियत का ये आलम था कि आप जा बजा इस मस्जिद का जिक्र फरमाती और इसे याद करती। कुतुबे अहादीस के मुताबिक कुर्बे क़यामत से कबल मस्जिद अक्सा बड़ी बड़ी जंगों, आजमाइशों और फितनों का मरकज होगी। सुनन अबू दाऊद के मुताबिक मस्जिद अक्सा और इसके इर्द गिर्द का इलाका ज़माना आखिर में जिहाद का मरकज बनेगा। ये जगह दज्जाल के खिलाफ मोमिनीन का एक बड़ा मरकज होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी भी सुनाई है कि मुसलमान एक मर्तबा फिर बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे और ये कुर्बे क़यामत की एक बड़ी निशानी होगी। तो दोस्तों, ये थी मस्जिद अक्सा की मालूमात पर मबनी एक मालूमाती और मुफीद वीडियो। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मर्तबा फिर ये गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।